విశాఖలో పవన్ కళ్యాణ్ మాయావతి మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ చూద్దాం. పార్టీకి మీరు కలిసి రావాలని చెప్పి చాలా రకాల ఆహ్వానాలు అందినాయి. అప్పుడు పరిస్థితులను బట్టి నేను ముందుకు తీసుకెళ్ళలేకపోయాం. కానీ ఆ సాన్నిహిత్యం రకరకాల మేధావులతోటి, బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ మేధావులతోటి, వీళ్ళందరితోటి కలవడం జరిగింది. అది ఈ రోజున 2019లో చాలామంది సన్నిహితులు, మేధావులు అందరూ కలిసి జనసేన బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ కలవాలి అనేది ప్రత్యేకంగా మా దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు 2014లో భారతీయ జనతా పార్టీ తోటి, టీడీపీ తోటి ముందుకెళ్ళడం జరిగింది. ఆ రోజున అప్పుడున్న పరిస్థితులను బట్టి భారతదేశంలో భారతీయ జనతా పార్టీ తర్వాత కాంగ్రెస్ తర్వాత ద వన్ అండ్ ఓన్లీ నేషనల్ పార్టీ ఇస్ బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ. ఈ రెండు కూడా స్టీమ్ అయిపోయిన పార్టీస్. ముఖ్యంగా కాంగ్రెస్ కానీ స్థానిక రీజనల్ అండర్స్టాండింగ్ లేని పార్టీలుగా అయిపోయినాయి భారతీయ జనతా పార్టీ కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ కానీ. అలాంటి తరుణంలో మేమందరం ఆలోచిస్తుంది, మేమందరం కోరుకుంటుంది, అసలు ముఖ్యంగా మనకి సంబంధించి రాష్ట్ర విభజన అని జరిగింది ఒకే ఒక్క స్లోగన్ మీద జరిగింది. కేసీఆర్ గారు చేసినా ఎవరు చేసినా దళితుల్ని ముఖ్యమంత్రి చేస్తాను అని చెప్పి తెలంగాణ ఉద్యమం ప్రారంభమైంది. అది ఏ పరిస్థితులు నెరవేర్చలేకపోయారు, అది వారికి తెలియాలి. కానీ మేమందరం అనేక కోట్లాది మందిలో లాగే నేను కోరుకుంటుంది, ఆ రోజున అది చేయలేకపోయాం. కానీ అనుకుంది చేయలేకపోయారు. ఈ రోజు మేము కోరుకుంటుంది what they could not do it at a Telangana state level. We wanted to see Behenji Mayawati ji as the Prime Minister of this great nation, and we want her guidance and her experience and her administrative caliber to guide this country, to progress this country with leaps and bounds. And this is our agenda, whatever best we could do from Andhra Pradesh, from Telangana, whatever best we could do to make sure that the support will be garnered from the states, from both the Telugu-speaking states, which would make sure that we endorse our support, we extend our support to fulfill a long-standing dream where we would like to see Behenji Mayawati ji as the Prime Minister of India. If a chaiwala could become Prime Minister, if a chaiwala from Chowkidar wanted to continue as Prime Minister, we wanted to see a lonely woman, a lonely fighter for a social purpose amidst all chaos, tough situations, how she had pulled herself amidst a lot of difficulties and difficult challenges, and how she made a name for herself, how she inspired the current generation of political leaders, including Mr. Akhilesh Yadav and people like me. And we wanted her guidance and expertise and experience to take the nation forward, and what best we could do, we'd like to extend it to Behenji Mayawati ji. And it's an honor to sit beside her, it's an honor to stand by her, and I'm conveying my wholehearted thanks to Behenji Mayawati ji. We are grateful to her, and on behalf of the Alliance, I want Behenji to speak a few words and address the media. Thank you. मीडिया बंधुओं, जैसा कि आप लोगों को ये विदित है कि यहाँ आंध्र प्रदेश स्टेट में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा का भी आम चुनाव हो रहा है, और आंध्र से लगा हुआ तेलंगाना स्टेट है, वहां पर केवल पार्लियामेंट के लिए, लोकसभा के लिए आम चुनाव हो रहा है।
आंध्र प्रदेश के बारे में आप लोगों को मैं कुछ कहना चाहूं तो उससे पहले मैं आपको ये भी बताना चाहती हूं कि तेलंगाना अलग से स्टेट बनने से पहले जब ये तेलंगाना आंध्र प्रदेश का हिस्सा था तो यहाँ पर आजादी के बाद लंबे अरसे तक कांग्रेस पावर में रही, लेकिन कांग्रेस ने ये पूरे आंध्र प्रदेश का ठीक ढंग से इसका विकास नहीं किया, डेवलपमेंट नहीं किया और तेलंगाना जो क्षेत्र है उसकी उपेक्षा की, जिसकी वजह से वहां के लोगों की ये डिमांड रही कि उनका अलग से स्टेट बनना चाहिए। हमारी पार्टी भी चाहती थी कि वो स्टेट बने। यदि उस क्षेत्र का विकास होता तो अलग से कोई स्टेट बनाने की जरूरत महसूस नहीं होती, लेकिन उस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ, इसलिए वो अलग से वो स्टेट बना। तो लेकिन अभी जो आंध्रा में अब ये दो अलग स्टेट बन गए, तो आंध्रा में जो पार्लियामेंट और असेंबली का चुनाव हो रहा है तो यहाँ की जो जनता है, तो हालांकि जब तक स्टेट नहीं बना था तो कांग्रेस को उन्होंने आजमाया, रीजनल पार्टीज को आजमाया, लेकिन स्टेट तेलंगाना अलग बनने के बाद भी आंध्रा को यहाँ पर जो रीजनल पार्टीज हैं तो उनकी गवर्नमेंट को उन्होंने यहाँ के लोगों ने आजमाया है। लेकिन आंध्रा में यहाँ की जनता को ना तो अच्छा लॉ एंड ऑर्डर मिला और ना यहाँ का डेवलपमेंट हुआ, और सेंटर में जो भी पार्टी पावर में रही तो वो आंध्रा के लोगों का वोट तो लेती रही, ये कह करके हम इसको स्पेशल स्टेट का दर्जा देंगे, लेकिन किसी ने भी नहीं दिया, ना कांग्रेस ने ना बीजेपी ने। तो आंध्रा के लोगों में बहुत गुस्सा है। तो यहाँ के लोग ये चाहते थे कि हमें अब ये जो रीजनल पार्टीज हैं इनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, चाहे तो श्री जगन की पार्टी है या श्री नायडू की पार्टी है, हमें इनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तो यहाँ के लोग ये चाहते थे कि कोई नई लीडरशिप सामने आए। यहाँ आंध्रा में लोग चाहते थे कि कोई नया लीडरशिप, नया नेतृत्व लोकल लेवल पे और यंग ब्लड सामने आए तो जो इस स्टेट को सही नेतृत्व दे सकता है। तो आप लोगों के बीच में तो इधर हमारे भाई बैठे हैं, तो श्री पवन कल्याण, तो आप लोग अच्छी प्रकार से इनको जानते हैं। यहाँ के बहुत ही कर्मठ हैं, युवा हैं, हर मामले में काबिल हैं। तो यहाँ के लोगों की दिली चाहती है कि कोई यंग ब्लड सामने आए और उसको हम आगे बढ़ावा दें। चेंज चाहते हैं, बदलाव चाहती थी, यहाँ की जो जनता है बदलाव चाहती है। तो यहाँ के लोगों ने श्री पवन कल्याण जी को आगे किया कि आप अपनी पार्टी बनाएं और यहाँ पर नई लीडरशिप दें। तो इन्होंने जन सेना पार्टी बनाई, लेकिन उसके बाद इन्होंने ये सोचा कि अभी हमारी ये नई पार्टी है तो अकेले जाना तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो हमें ऐसी पार्टी के साथ अलायंस करना चाहिए तो जो यहाँ के लोगों, जो जन सेना पार्टी के साथ मिलकर तो एक सही गवर्नमेंट दे सके। तो हमें भी यहाँ पर सही लीडरशिप की जरूरत थी। तो फिर बीएसपी, जन सेना पार्टी, सीपीएम, सीपीआई, इनका इस चुनाव में, पार्लियामेंट और असेंबली के चुनाव में यह अलायंस हुआ है। और अच्छी बात यह है कि इस अलायंस को तो इधर आपके आंध्र प्रदेश स्टेट में श्री पवन कल्याण जी तो पूरा रात दिन मेहनत के साथ इधर लगे हैं कि इस अलायंस को
पार्लियामेंट और असेंबली में ये जो चुनाव हो रहा है यहाँ पर तो अच्छा रिस्पांस मिले, अच्छा रिजल्ट मिले। और मुझे पूरा भरोसा है कि यदि हमारे अलायंस को यहाँ पर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिल जाती है और यहाँ गवर्नमेंट हमारी बन जाती है, तो फिर हमारा जो अलायंस है, हमारी पार्टी, तो श्री पवन कल्याण जी को एज ए सीएम कैंडिडेट, एज ए मुख्यमंत्री कैंडिडेट हम तो पहले से इनको मान के चल रहे हैं कि ये जो गठबंधन है इनको आगे इनको प्रोजेक्ट किया एज ए सीएम कैंडिडेट। और अलायंस को यदि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिल जाती है तो अलायंस की तरफ से ये यहाँ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के ये मुख्यमंत्री बनेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है क्योंकि यहाँ की जो पब्लिक है वो अभी थोड़ा साइलेंट है, वो सोच रही है कि क्या किया जाए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ के पब्लिक के थोड़े साइलेंट रहने की वजह से वो कुछ थोड़ा चेंज चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, और इसलिए वो लोग, यहाँ की जनता बड़ी गंभीर है। और मुझे पूरा भरोसा है कि जो बीएसपी, जनसेना पार्टी, सीपीएम, सीपीआई का जो अलायंस हुआ है ये सक्सेसफुल होगा पार्लियामेंट के चुनाव में भी, असेंबली में, और सक्सेसफुल होगा। और ऐसा लगता है कि हमारी गवर्नमेंट बनेगी और गवर्नमेंट बनने के बाद श्री पवन कल्याण जी को यहाँ का सीएम बनाया जाएगा, मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि श्री पवन कल्याण जी तो ये बहुत ही सोशल नेचर के हैं। ये चाहते हैं कि जनता को जो है आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। और इसके लिए ये मुझे ये जब जानकारी मिली कि ये अपने इंडिया में कई स्टेट में गए, तो यूपी में भी गए, तो इनको ये लगा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने तो देश का संविधान बनाया और देश में जो खास तौर से जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, उनके लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया मतलब। और आपके तेलंगाना में भी और आंध्रा में भी इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो जब इनको मालूम पड़ा कि उत्तर प्रदेश जो इंडिया का पॉपुलेशन के हिसाब से बड़ा स्टेट है, कि एक दलित वर्ग की लड़की जो है तो वो उत्तर प्रदेश की सीएम बनी है। मैं 4 बार वहां की सीएम रही, 4थी बार एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हमारी पार्टी को मिली। हमने कोई अकेले चुनाव लड़ा था, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिली। और जब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिली तो हमारे ऊपर किसी का कोई प्रेशर नहीं था। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जो चाहते थे, मान्यवर श्री कांशीराम जी जिन्होंने इस पार्टी की नींव रखी, तो उनकी सोच के मुताबिक मैंने उधर अकेले वीकर सेक्शन का ही नहीं बल्कि जो अपर कास्ट के में से जो गरीब लोग हैं उनका भी, जो किसान हैं, बेरोजगार हैं, सभी सेक्शन का, जो विभिन्न क्षेत्र में लोग जो लोग काम कर रहे हैं, उन सबके हितों का ध्यान रखा। और जिन्होंने अपने देश का आईन बनाया, संविधान बनाया, उनको पूरा आदर सम्मान दिया, जिनको पूर्व की सरकारों में जिनकी उपेक्षा की गई थी। तो इनको ये लगा कि भाई आंध्रा में भी कुछ डेवलपमेंट होना चाहिए, बढ़िया लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए। तो ये अपने कंट्री में कई स्टेट में गए, यूपी में भी गए। तो बाद में जब ये इनसे अलायंस को लेकर बातचीत हुई लखनऊ में, तो इन्होंने बताया कि मैं बहुत प्रभावित हुआ लखनऊ में आकर, जो लखनऊ यूपी का कैपिटल है, कि इधर जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, मान्यवर श्री कांशीराम जी के नाम पर जो स्मारक बने हैं और जो यहाँ का जो महानगर का जो इसको डेवलप किया जिस तरीके से, तो ये पहला लखनऊ है, ये लखनऊ बिल्कुल बदल गया बीएसपी की हुकूमत में। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, मीडिया बंधुओं को, और मीडिया के माध्यम से आंध्र प्रदेश के स्टेट को भी मैं अपना मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ कि आंध्र प्रदेश की जो स्टेट की जो जनता है, तो उनको अपना वोट डिवाइड नहीं करना चाहिए एक तरफा, क्योंकि आप लोग जिनको जो यहाँ की रीजनल पार्टीज हैं या नेशनल पार्टी जो चुनाव लड़ी है उनको आजमा चुके हैं,
उनको मौका दिया आप लोगों ने। तो मेरा मीडिया के माध्यम से आंध्र प्रदेश स्टेट की जनता से यह अपील है कि वो एक मौका श्री पवन कल्याण जी को भी जरूर दें, हमारे अलायंस को जरूर यहाँ पे एक मौका दें और हमारी गवर्नमेंट बनाए। और जब गवर्नमेंट बन जाती है तो मुझे पूरा भरोसा है ये यूपी के पैटर्न पर चलकर तो सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की ये गवर्नमेंट इधर जरूर यहाँ पर चलाएंगे। और इसके साथ ही मैं इनको ये भी आंध्रा के लोगों को ये भी मैं विश्वास दिलाना चाहती हूँ, यहाँ के स्टेट के लोगों को मीडिया के माध्यम से, कि अभी इस समय क्योंकि पार्लियामेंट का भी चुनाव हो रहा है और पूरे देश में खास तौर से क्योंकि पूरे देश के अंदर तो जनता ने कांग्रेस के भी हुकूमत को आजमाया है। आजादी के बाद लंबे अरसे तक सेंटर में कांग्रेस पावर में रही। कांग्रेस क्यों सत्ता से बाहर हो गई? क्योंकि उन्होंने जो चुनाव के दौरान जनता को वायदे किए थे उसको उन्होंने पूरा नहीं किया, वो सत्ता से बाहर हो गए और उसका फायदा फिर भारतीय जनता पार्टी ने उठाया। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले लोकसभा आम चुनाव में सन 2014 में जब लोकसभा का आम चुनाव हुआ तो बीजेपी ने बड़े बड़े वायदे किए, लेकिन जब वो पावर में आ गए तो उन्होंने अपने लगभग पूरे 5 वर्षों के अंदर अपने वायदों को पूरा नहीं किया, अपने वायदों को पूरा नहीं किया और वायदों पर से जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए तो वो दूसरे मुद्दों की तरफ जनता का ध्यान डाइवर्ट कर दिया। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि जनता जो है नेशनल लेवल पे सेंटर की गवर्नमेंट के मामले में तो कांग्रेस को भी आजमा चुकी है और बीजेपी को भी। जनता जो है सेंटर में भी तब्दीली चाहती है पूरे कंट्री में। तो पूरे कंट्री के लोग चाहते हैं कि सेंटर में ऐसी पार्टी पावर में आनी चाहिए तो जिससे लोगों का वेलफेयर हो, अपना कंट्री सेफ रहे, वेलफेयर हो, ऐसा जनता चाहती है। और तो इसलिए मेरा तो यही कहना है कि यदि सेंटर में हमें सरकार बनाने का मौका मिलता है तो हम लोग तो हमारा ये मानना रहा है कि हम लोग कहते बहुत कम है, करके दिखाने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। हमारी पार्टी कहने में नहीं, करने में ज्यादा विश्वास रखती है। और यदि हमें सेंटर में मौका मिलता है तो उत्तर प्रदेश के पैटर्न पर चलकर हम पूरे कंट्री को एक बेहतरीन गवर्नमेंट देंगे। हर मामले में, हर स्तर पर एक अच्छी हम सरकार देंगे। और इतना ही नहीं, खास तौर से जो गरीब लोग हैं सर्व समाज में से, मैं अकेले वीकर सेक्शन की बात नहीं कर रही हूं, सर्व समाज में से जो गरीब लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं, उनका प्राथमिकता के आधार पर उनकी गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। और जो किसान लोग हैं उनकी विभिन्न समस्याएं उनको दूर किया जाएगा। और ये मेरे लिए कोई नया नहीं है, मैं 4 बार यूपी की सीएम रही हूं, मेरा बड़ा तजर्बा रहा है। उस तजर्बे का पूरा इस्तेमाल किया जाएगा जनता के वेलफेयर में। तो मेरा यही कहना है कि अभी तो इलेक्शन चल रहा है, जब रिजल्ट आएगा, जैसी स्थिति बनेगी आप लोगों के सामने है। तो यदि हमें सेंटर में गवर्नमेंट बनाने का मौका मिलता है तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूं कि किसी भी स्टेट के साथ तो पक्षपात नहीं किया जाएगा। जैसे अभी कोई पार्टी यदि कांग्रेस पावर में आती है तो वो अपने हिसाब से स्टेट की मदद करती है, किसी की करती है, किसी की नहीं करती है। बीजेपी आती है, वो अपने हिसाब से करती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तो पूरे कंट्री में, हर स्टेट में हम लोग पूरा ध्यान रखेंगे जो वहां की लोकल प्रॉब्लम्स हैं। तो